بتائیں گے, ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کے بتائیں گے, مسجد کے اسپیکر میں کھڑے ہو کر بتائیں گے کہ تم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اس کام کو آگے بڑھانے اور اویئرنیس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ پیٹریون، اونلی فینس یا سمپلی پے پال کے تھرو سپورٹ کر سکتے ہیں. لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے. آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے. ہیلو ایوری ون, ہاؤ آر یو؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میرا نام ہے مہلیش اور آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب کے چینل پہ. آج میں آپ کے لیے ایک اور بڑا مزیدار ویڈیو لے کر آئی ہوں. آج کا ویڈیو ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آج کا ویڈیو ایک ڈیبیٹ پہ ہے اور آپ ان دونوں لوگوں کو جانتے ہیں, کون نہیں جانتا ہے, ایڈم اور ساحل کو. تو یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور زیادہ تر میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ میرے بھی چینل پہ مومنینز آتے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتے ہیں, آرگیو کرتے ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں, اپنے پوائنٹس رکھتے ہیں. تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے دوسروں کو سننا, کیونکہ میں اپنی تو ڈیبیٹیں کرتی رہتی ہوں, رائٹ, اپنی باتیں بھی سنتی ہوں, مگر اٹس گڈ ٹو لسن ٹو ادر پیپل. اور پھر مزہ بھی آتا ہے کہ, اور سننے میں بھی آتا ہے کہ کیا کیا باتیں ہوتی ہیں, کیا کیا بونگیاں ہوتی ہیں یار. تو خیر, کبھی کبھار تو سر میں درد ہو جاتا ہے اور آئی ایم ریڈی ٹو گیٹ اندر جلیبی اور سر درد پالنے کے لیے. اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا سر درد اور یہ ٹارچر آپ بھی میرے ساتھ سہیں. تو اسی وجہ سے ویڈیو ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے. میں نے ابھی تک ویڈیو کو دیکھا نہیں ہے, مگر ویڈیو پہ جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. مجھے پتا ہے آپ سب لوگ دیکھتے ہو مگر سبسکرائب نہیں کرتے ہو. سب دیکھتے ہو مگر سبسکرائب نہیں کرتے ہو. بھیا ایک بٹن کا سوال ہے بابا, ایک بٹن دباؤ, سبسکرائب کرو, سبسکرائب کرو, سبسکرائب کرو. چلیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں. فیض نقوی تو میرے خیال سے شیعہ حضرات ہوتے ہیں نا. Am I audible? یس, یو آر آڈیبل. شیعوں کا کلمہ سنا سکتے ہیں آپ؟ جی بالکل, سنا دیجئے. الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ووسی رسول اللہ وخلیفتہ بالعفو. الحمدللہ. ٹیسٹ پاس ہو گیا. سر جی یہ بتائیں, عائشہ اچھی عورت تھی کہ بری عورت تھی؟ جہاں تک میں نے پڑھا, جتنا مجھے پتا ہے کہ عائشہ نے ہی رسول اللہ کو کیا کہتے ہیں پوائزن کیا تھا, جہاں تک مجھے پتا ہے, کیونکہ ایکچولی میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں اینڈ میں ایڈمیشن کر رہا ہوں. تو عائشہ نے پوائزن دیا تھا, میں مان گیا. تو عائشہ نے محمد کو پوائزن دیا, زہر دیا, تو عائشہ اچھی عورت تھی کہ بری عورت تھی؟ اگر آپ لاسٹ کے فیزز دیکھو تو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا آپ کو, بالکل بھی اچھا نہیں بولو گے آپ, کیونکہ آپ کے اپنے ہسبینڈ کو انہوں نے قتل کیا. سر میں یہ نہیں پوچھ رہا میں کیا بولوں گا, سر چھوڑیں سر, میری ویلیو کیا ہے اسلام کے سامنے. آپ یہ بتائیں کہ عائشہ اچھی عورت تھی یا بری عورت تھی, بس یہ بتائیں. بری عورت تھی. اچھا آپ اس وقت بھائی صاحب وہ بری عورت کیسے ہوئی؟ اب بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو پھنس جاتی ہیں برے مردوں کے ساتھ, پٹ رہی ہوتی ہیں, ان کی جان نہیں چھوڑتے وہ, تو وہ کیسے اپنی جان چھڑائیں گی؟ اسی طرح سے میرے خیال سے پوائزن دے کر ہی جان چھڑائیں گے. ایسی ایک کیس ہوا تھا 18 صدی میں, آئی تھنک اٹلی میں, ایک بندی تھی, وہ میک اپ کمپنی تھی اس کی, وہ میک اپ چلاتی تھی اور وہ میک اپ کے تھرو تھوڑا تھوڑا پوائزن جو ہے لڑکیوں کو یعنی عورتوں کو میک اپ بیچتی تھی, اور اس میں پوائزن ملا ہوا ہوتا تھا. وہ تھوڑی تھوڑا کر کے ایسے مردوں کو دیتی تھیں جن سے وہ جان نہیں چھڑا سکتی تھیں, کیونکہ اس زمانے میں ڈیورس وغیرہ تھوڑی ہوتی تھی. جس پاگل کے ساتھ آپ کی شادی کرا دیتے تھے تو اس پاگل کے ساتھ آپ کو ساری زندگی نبھانی پڑتی تھی. اب کوئی پاگل انسان ہے, اس کے ساتھ کیسے آپ کریں, رائٹ؟ سو بری عورت نہیں تھی وہ. واقعے کو بھی مانتے ہیں عائشہ نے سیکس کیا تھا کسی اور مرد کے ساتھ, اس واقعے کو آپ نہیں مانتے؟ نہیں, ایکچولی ہم لوگ کی کتاب میں کبھی ایسا کچھ میں نے گو تھرو نہیں ہوا, کیونکہ اہل سنت سنی اور شیعہ کی کتاب کافی زیادہ ڈفرینٹ. ہاں میں آپ کی کتاب کے ریفرنس بتا رہا ہوں. الکافی کے مطابق آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں, آپ نے پڑھا؟ نہیں ایکچولی میں نے نہیں پڑھا. تو عائشہ زناکار نہیں تھی آپ کے مطابق؟ میرے خیال سے تو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ نہیں ہونا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ہم اس کو سائڈ پہ رکھ دیں, کسی کوئی اور شیعہ آئے گا اس سے پوچھ لیں گے, ڈونٹ وری. میڈم کھانا کھا لو. اب بات یہ ہے کہ آپ کے مطابق عائشہ ایک بری عورت تھی, یہ تو ہم نے کلیئر کر دیا. اس نے محمد کو زہر دیا, قاتلہ ہو گئی نا. جی اوکے. قرآن کے اندر ایک آیت آتی ہے, جی بتائیے, کہ ہم نے اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں رکھی اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں. جی محمد کو اگر عائشہ ملی اور بری عورت تھی تو محمد بھی برا ہوا نا. پر یہ جو چیز ہے یہ پھنس گیا. معصومین اگر آپ کو پتا ہو
तो मासूमीन के मुझे लिए पता है चीज नहीं मासूमीन क्या होता है, लेकिन कुरान की आयत के मुताबिक, कुरान की इस आयत के मुताबिक मोहम्मद मासूमों में कैसे आ जाएगा? क्योंकि कुरान की आयत कहती है अच्छा, मुझे तो लगता है यार जो अच्छे मर्द होते हैं उनको बुरी औरतें मिलती है, जो बुरे मर्द होते हैं, बुरी औरतें होती हैं उनको अच्छे मर्द मिलते हैं. इट्स दी ऑपोजिट. मुझे तो यही लगता है, जब तो डिवोर्सेस हो रही होती है, जब तो इतने ब्रेकअप हो रहे होते हैं भाई. अगर कपल्स जो अच्छे अच्छे मिल रहे होते, एक ही जैसे होते, तो डिवोर्स ही नहीं होती है ना. चैप्टर में 24 की आयत नंबर 26 कहती है, एंड वी हैव मेड करप्ट वुमेन फॉर करप्ट मैन एंड करप्ट मैन फॉर करप्ट वुमेन. ठीक है, ये कुरान की आयत है. तो कुरान कह रहा है, अगर आप मानते हैं कि आयशा करप्ट औरत थी, उसने अपने हस्बैंड को जहर दे के मारा है, कातिलों में से हो गई वो, ऑब्वियसली कातिल है तो बुरा है, राइट? मोहम्मद जैसे बंदे का कत्ल किया, ओह नबी का कत्ल किया, लेट अलोन एक आम बंदे का कत्ल, नबी का कत्ल, राइट? इतनी बुरी औरत. तो भाई फिर आप मुझे ये बताइए कि मोहम्मद अच्छा बंदा कैसे हुआ, जबकि कुरान कह रहा है अल खबीस के लिए खबीसैन वल खबीसून के लिए खबीसात. खबीस औरतों के लिए खबीस मर्द और खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें. तो अगर आयशा एक खबीस थी क्योंकि उसने मोहम्मद को मारा, इससे बड़ी खबीस कौन हो सकती है जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी उसको मारा? तो फिर मोहम्मद की अगर बीवी खबीस, तो फिर मोहम्मद खबीस क्यों नहीं? कुरान की इस रूह से चैप्टर में 24 आयत नंबर 26. तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जितने भी मासूमीन हैं उनके लिए एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि उनको एक रोल मॉडल देना होता है, रोल मॉडल देना होता है सोसाइटी को. अब जैसे सर एक सेकंड आप शरा कह रहे हैं कुरान आपके शक से ऊपर है या नीचे है? पहले मैं ये अंडरस्टैंड कुरान ऊपर है ना. ओके, मैंने आपको हदीस नहीं दी, मैंने आपको किसी मासूम का कॉल नहीं दिया, मैंने आपको कुरान दिया. आपके किसी भी मासूम का कॉल गलत हो सकता है, करेक्ट? कुरान गलत नहीं हो सकता, ये बात आप मानते हैं? जी. ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको कुरान बता रहा हूँ, अल खबीसातु लिल खबीसैन. ठीक है, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए, ठीक है, और खबीस मर्द वल खबीसूना लिल खबीसात. ठीक है, और खबीस मर्द खबीस. आपने मेरे साथ अभी गवाही दी है, एग्री किया है कि आयशा खबीसों में से थी, ठीक है, क्योंकि उसने ना सिर्फ ये कि एक आम बंदे का कत्ल, उस लेट अलोन एक आम बंदे का कत्ल, उसने नबी रहमतुल्लिल आलमीन नबी हजरत मोहम्मद के कत्ल किया, उसको जहर दिया. सही पकड़ा है उसने, राइट? तो बकौल एनी डिक्शनरी आयशा से बड़ी खबीस औरत कोई नहीं हो सकती जिसने नबी का कत्ल किया. जी. नाउ अब हम आते हैं कुरान में. अब कुरान के मुताबिक अगर हम अल्लाह की बात को सत्य माने, सही माने, करेक्ट माने, अथॉरिटेटिव माने, तो फिर मोहम्मद साहब से बड़ा खबीस कोई नहीं. नाउजुबिल्लाह, मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा, मैं कुरान को रेफरेंस देके बात कर रहा हूं. कुरान के मुताबिक नाउजुबिल्लाह मोहम्मद साहब से बड़ा खबीस कोई नहीं, क्योंकि एक खबीस लड़की के साथ उन्होंने शादी किया था, खबीस लड़की के साथ रहे और सारी उम्र रहे. मैं नहीं कह रही, मुझे फतवे मत लगाना प्लीज. मैं नहीं कह रही. दरअसल कुरान में ना सारी चीजें एक साथ नहीं बताई जाती, वो आपको पार्ट्स में बताई जाती है. ओके, आप इसको किसी भी और कुरान की आयत के साथ कनेक्ट करके मुझे साबित कर दें कि मोहम्मद साहब खबीस नहीं थे. एक्चुअली मेरे पास कुरान है, तो एट करंट मोमेंट मेरे पास ऐसे कोई आयत नहीं. आई एम डेफिनेटली श्योर कि ऐसी कोई ना कोई आयत होगी या कोई ना कोई ऐसा मेटाफर रेफरेंस होगा. नहीं एक्चुअली. इसका मतलब है कि कुरान की ये आयत जो है, आप इसको मानते नहीं है, इस आयत को आप इसको खाते जाते हैं. बिल्कुल मानते. अगर मानते हैं तो फिर माने इस बात को भी. मैंने जैसा आपको बताया ना, सारी चीजें एक साथ नहीं होती हैं. एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, एक पॉइंट आपको कहीं और मिलेगा जरूर. क्यों क्योंकि जब कुरान आपके नाज़िल, जब कुरान आपको पढ़ाया गया था या जब रसूल ने कुरान पढ़ाया था लोगों को, तो वो इवेंट्स पे पढ़ाते थे. जब कोई इवेंट होता था उससे रिलेटेड आपको तो एक इवेंट में मोहम्मद ने बताया ना ये बात कि खबीस औरतों के लिए खबीस मर्द हैं. जी, बात खत्म. यहाँ पे इल्ला लिखा है, एक्सेप्ट का वर्ड है, एक्सेप्ट कोई खास किस्म के लोग. अल्लाह कुरान में अक्सर कहता है ना. कैसा लग रहा है आपको सर्कल में जाते जाते? झूम बराबर झूम बराबर. मुझे तो यही हो रहा है, सर्कल में जा रहे हैं, उसी सर्कल में घूम रहे हैं, उसी सर्कल में घूम रहे हैं.
सिंपल बात है, कहता है होगी। अरे भाई होगी, तुम पता तो करो होगी कि नहीं होगी, है कि नहीं है। होगी लिखा होगा, अल्लाह मियाँ का सब कुछ अल्लाह मियाँ के भरोसे छोड़ दिया है। अल्लाह मियाँ भी कह रहे होंगे यार बस छोड़ दो मेरे को, क्या 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 आवाम है। एक चीज बोलता है फिर कहता है एक्सेप्ट, फिर बोलता है इल्ला, फिर बोलता है इल्ला। इस आयत में इल्ला नहीं है, मैं क्या करूं? जैसा मैंने आपको बताया, और बहुत सी आपने अगर शिया कुरान भी पढ़ा हो तो शिया कुरान में शिया तर्जुमे कुरान काफी फर्क है? ज्यादा, हाँ काफी ज्यादा तर्जुमे चेंज हो जाते हैं। तर्जुमा। अच्छा मुझे ये बताएं, जी, अली का कुरान का है, अली का कुरान का है? हजरत अली का कोई कुरान मुझे तो नहीं लगा कभी लिखा गया है कि हजरत अली ने अपने हाथ से कोई कुरान लिखा है या अपना आपने खुद से कोई कुरान बनाया है। आपने अपने स्कॉलर से नहीं सुना कि अली का कुरान मरदूद उस्मान ने जला दिया, लानत अल्लाह की हो मरदूद उस्मान पे? पहले के जमाने में काफी किताबें जलाई जाते थे, इवन आज तक तो अली का लिखा हुआ मुकम्मल कंप्लीट नुस्खा मरदूद उमर ने जला दिया, क्या आपने अपने स्कॉलर के मुंह से लफ्ज कभी नहीं सुने? मैंने ये बातें सुनी है कि काफी जो किताबें थी, जो बुक्स थी, उनको ओपन कर दिया जाता था ताकि जो एक्चुअल चीजें हैं वो ना आगे बढ़ पाए, और जो जितने भी खलीफा हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक इस्लाम को कंट्रोल करके अपनी जिंदगी आसान बना पाए। तो ये चीजें डेफिनेटली होती थी। तो फिर वो उस मरदूद ने जो अली का कुरान जला दिया, तो मुकम्मल नुस्खा है आपके पास क्या? पूरा कुरान तो नहीं है, मतलब जो बेसिक कुरान है, जो अरबी कुरान है, तो अहले सुन्नत में भी सेम है और अहले सुन्नत की हदीस में फर्क है ना? कहीं कुछ हो जाता है, कहते मुकम्मल है कुरान, ट्रांसलेशन चेंज हो जाता है। आप अरबी जुबान को, अरबी ज़बान ट्रांसलेशन को छोड़ें, ट्रांसलेशन एक सेपरेट चीज है। मैं अभी अरबी कुरान की बात कर रहा हूँ। अली ने जो अरबी कुरान लिखा था वो जला दिया उस्मान ने और अपनी मर्जी का कुरान डाल दिया, उसका क्या करें? नहीं, अपनी मर्जी का नहीं डाल सकता। दरअसल इस चीज को जब इस्लाम को मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है, तब सबसे पहले लोगों को पूरी आयतें कुरान की, पूरा कुरान याद कराया जाता था। प्लीज मुझे इसका रेफरेंस दें किसी ना किसी जगह से, जहाँ से भी आप दे सकते हैं। एट करंट पॉइंट मेरे पास रेफरेंस नहीं होगा, मैं आपको पता करके जरूर बता दूंगा। मिरातुल अकूल एक किताब है शिया की सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिग कुरान किताब। उसके वॉल्यूम नंबर 12 के पेज नंबर 525 में लिखा हुआ है कि जो अली का कुरान था जिसमें तकरीबन 17,000 आयात थी, वो जला दिया गया और आज के कुरान में सिर्फ 6,000 आयतें हैं। तो बेसिकली 1/3 ऑफ द कुरान बचा हुआ है आपके पास सिर्फ, उसका क्या करें? ऐसा मैंने कभी ना पढ़ा ना किसी मसला नहीं, मैं हूं ना सर आपके पास है। सर अब आप आदम सीकर के पास आए हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, तो कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं देखा, ना रेफरेंसेस। في مرآة العقول، في مرآة العقول المجلد 12 صفحة 525 علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية. كم آية مولانا؟ 17,000. إيش قد عندنا إحنا منها؟ 6,000. يعني إيش قد من القرآن بأيدينا؟ وين القرآن مولانا؟ ثلثه يعني كانت القرآن 3 أجزاء، باقي منه إيش قد مولانا؟ باقي منه جزء. سؤال. طبعا العلامة البهبودي يضعف الرواية في صحيح الكافي، ولكن انظروا ماذا يقول العلامة المجلسي: فالخبر صحيح ولا يخفى أن هذا الخبر. जी सर, साहब क्या कहते हैं आप इस बारे में? अब आपके सामने आया, ठीक है, और ये आपके स्कॉलर कह रहे हैं कि खबर भी सही है, ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि सर आप क्या कहते हैं, क्या अभी भी आपको शक है? जलेबी बनाऊंगा, अगर है तो मुझे बताएं। साहिल भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, अभी मैं सुन रहा था इनकी डिबेट, तो उन्होंने बोला कि कुरान जो है वो, अगर आप दीन देखो, जो ट्रू दीन है, इस्लाम है, उसमें अगर आप कह लो 50% सिर्फ कुरान का है और बाकी 50% जो है नहीं, 50% कुरान सिर्फ 20% के ऊपर है। मैं मानते हैं कुरान 20% है, बाकी सारा आपका हदीसों में, फिका में, शरह में है। लेकिन एटलीस्ट एक बात तो कंफर्म हो गई कि हमारे पास अली का कुरान नहीं है, करेक्ट?
हाँ, अगर ये स्कॉलर मुझे एक्चुअली पता नहीं है, स्कॉलर साहब कौन थे, जो मैं बाद में रिसर्च डेफिनेटली पढ़ लूंगा। पर अगर ये शिया हैं, और एक्चुअली शिया में भी ये कई शिया हैं, शिया हैं, कैटेगरीज, हाँ एक्चुअली में शिया में भी कई अच्छे वाले कैटेगरीज शिया हैं, होती डोंट हैं। वरी। हम्म, तो अगर ये फॉल है, इन्होंने दावा किया है कि 17,000 वर्सेस थी और सिर्फ 6,000 वर्सेस बची हैं, तो बाकी की जितनी भी चीजें हैं वो आप अहले बैत से ले सकते हो, मतलब रसूल के घर से ले सकते हो। रसूल के घर से ले लेंगे बाद में, लेकिन अभी तो बात ये है कि अभी ये जो हम देख रहे हैं कि कुरान में मैंने आपको बताया कि ऐसी आयत भी कोई नहीं, तो गेम तो यहाँ पे खराब हो गई ना हमारी। तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि 17,000 थी तो उसमें 6,000 जितनी कटी हैं या जितनी नहीं मिली, उसमें ही कहीं ना कहीं ये लिखा हो। ऐसा भी possible है फिर। आपके किसी स्कॉलर ने इस चीज को बयान किया? मैंने आपको पहले ही बताया कि तो इसका मतलब है 1400 साल से आप एक मजहब मान के चल रहे हैं, एक आइडियोलॉजी मान के चल रहे हैं, और आपको उस आइडियोलॉजी के अंब का नहीं इल्म, क्योंकि जो उस आइडियोलॉजी की जो मेन चीज थी वो तो चोरी हो गई है, आपके पास है ही नहीं। सो आइडियोलॉजी जिस चीज के ऊपर बैठी हुई है वो है कुरान, और कुरान तो हो गया फारे, तो पीछे रह के गया मेरी जान, अहले बैत, रसूल का अहले घर, बैत रह रसूल गया। का ओके, खानदान। आप मुझे बताएं, अली का बेटा हसन हुसैन, अली की जमाने की कोई भी किताब जो उसने लिखी हो, एक भी आपके पास मौजूद है? नहजुल बलागा नहीं, नहजुल बलागा अली के हाथ की लिखी नहीं है, वो क्लेम की जाती है कि अली के हाथ खुतबात के हैं, नहीं लिखे, हाँ, अली उनके के letters हैं, खुतबात है, क्लेम खुतबात की जाते हैं। अच्छा, नहजुल बलागा किस इमाम ने दिया आपको? 7वें ने कि 8वें ने? हैं। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 7वें ना। 7वें ने। 7वें इमाम ने जब किताब आपको लिख के दी, क्या उसका ओरिजिनल नुस्खा आपके पास मौजूद है? मुझे तो इस बात पे कोई इल्म नहीं है। एग्जैक्टली नहीं मौजूद है। अच्छा, ये ले पकड़े, मैं आपको खुमैनी की एक और वीडियो देता हूँ, बड़े मजेदार, मुझे खुमैनी बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे पास इमाम है, तौहीदी नाम है इनका, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, और ये भी शिया थे एक जमाने में, और तौहीदी के जो खुमैनी के मदरसे से पढ़े हुए हैं। आजकल इन्होंने खुमैनी की बैत छोड़ दी है तकरीबन 5-6 साल पहले, और इनका जो अब नाम है वो इमाम ऑफ पीस है, इन्होंने अपना नाम इमाम ऑफ पीस रख लिया है, नाम इनका तौहीदी है। तो इस वक्त ये खुमैनी की कांड बजा रहे होते हैं, क्वाइट फ्रैंकली, आई एम सॉरी टू से, मगर ये कर रहे होते हैं, मैं खुद नहीं बोलूंगा। इन्होंने तौहीदी साहब ने खुमैनी की किताब पढ़ के क्या क्या दिखाया, आप भी सुने, मैं भी सुनता हूँ। अंग्रेजी आपको समझ आती है सर? यस, बिल्कुल। ओके, जहाँ पे चाहेंगे मैं रोक के ट्रांसलेशन कर दूंगा। ट्रांसलेशन कर लेना। Respected followers, respected guests, everyone that's on my page, peace be upon you all. All right, now, after we exposed the child raping in the books of Imam Khomeini, a group of people came out saying, no, this is not true, Tawheed is lying, these are not the books of Khomeini. तो वो कह रहे हैं, जिन लोगों को इंग्लिश नहीं समझ आती, मैं जरा ट्रांसलेट उनके लिए कर लूं, आपके लिए जरूरी नहीं है। कह रहे हैं कि मैंने जिस वक्त तौहीदी साहब कह रहे हैं कि मैंने जिस वक्त इमाम खुमैनी को एक्सपोज किया कि वो रेपिंग अलाउ करता है, चाइल्ड मोलेस्टिंग अलाउ करता है, तो लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये इमाम खुमैनी के बारे में झूठ बोल रहा है। तो आज की मेरी शॉर्ट वीडियो इसी टॉपिक के बारे में है कि मैं दिखाता हूं कि मैंने कहां से बोला था और क्या रेफरेंसेस दिए थे। Trying to stick up for a absolute advocate for child raping. और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो कि इस बंदे को फॉलो करते हैं, जो कि एडवोकेट करता है, जो कि उसके बारे में हुज्जतें प्रेजेंट करता है चाइल्ड रेपिंग के बारे में। So how about I just show you the book? This here कहता है कि सबसे पहले मैं आपको किताब दिखाता हूँ। is Tahrir al-Wasila and it's volume number 2. वॉल्यूम नंबर 2 है तहरीर अल-वसीला का, and published in the Islamic Republic of Iran. ईरान के अंदर पब्लिश हुई। We'll take a look at the license of the book. ये वो किताब का लाइसेंस इस वक्त published by the institute that publishes and spreads the teachings of Imam Khomeini. This is their email if you'd like to go and say thank you to them. सारा कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है। These advocates for child rape. This is the book that I was forced to study. ये वो किताब है जिसको मुझे जबरदस्ती पढ़ना पड़ा in the Islamic Institute of Iran. जब मैं ईरान में स्टडी कर रहा था मदरसे के अंदर। This is the book of Sharia law.
یہ وہاں کی شریعہ کی کتاب ہے, امام توحیدی بتا رہے ہیں. Come over here. The chapter of marriage, the ethics of conducting a marriage contract. شادی کے کانٹریکٹ کرنے کے ایتھکس کیا ہیں, اس کے چیپٹر کو یہ پڑھنے لگے ہیں. Marriage procedure, page number 255. 255 نمبر کے صفحے پہ. Sharia law number 12. لا نمبر 12 شادی کے بارے میں. Clearly he rules, this is his verdict. لا یہ امام خمینی کا ورڈکٹ ہے. معصوم ہے بقول آپ کے, شیعہ ہیں آپ, معصوم ہے امام خمینی. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ امام خمینی صاحب, اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے ان کی تقلید کی ہوئی ہے. يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين. It is not permissible to sexually penetrate the wife before she finishes 9 years old, whether it be permanent or temporary marriage. آپ کسی بھی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے ہیں جب تک وہ 9 سال کی عمر کا نہ پہنچ جائے, چاہے وہ پرماننٹ میرج ہو یا وہ نکاح المتع یعنی کہ ٹیمپریری میرج ہو. وأما سائر الاستمتاعات, as for other methods and means of sexual pleasure. لیکن دوسرے ٹائپ کے سیکشل پلیجر کون سے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے, وہ جائز ہیں. And entertainment كاللمس بشهوة, like touching out of sexual lust. جیسے کہ چھوٹی بچیوں کو ہاتھ لگانا شہوت کے ساتھ یعنی کہ لسٹ کے ساتھ, and hugging out of sexual lust. اور ان کو ٹھنڈی لگانا, ان کو جادو کی چپی دینا لیکن سیکشل لسٹ کے ساتھ. والتفخيد thighing, which based اور ان کو تھائنگ کرنا یعنی کہ ٹانگوں کو فولڈ کر کے اس کے تھائز کو جوڑ کے اس کے تھائز کے درمیان میں اپنا پرائیویٹ پارٹ رکھ کے رگڑنا, تھائنگ اسے کہتے ہیں. عربی میں لفظ مفاخذہ. basically means folding the thighs of the underage girl and penetrating her thighs. بالکل انہوں نے ایکسپلین دیا کہ تھائز کو فولڈ کر کے جوڑ کے اس تھائز کے درمیان میں اپنا پرائیویٹ پارٹ رکھ کے کھینچنا. All of these كاللمس بشهوة, touching her, touching the baby girl with a sexual desire, sexual lust, hugging her with a sexual lust, and thighing her. فلا بأس بها, there is no problem in that. اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. شادی کر کے سیکس آپ 9 سال کے بعد کرو گے, لیکن اس کے علاوہ آپ اس کے ساتھ تھائنگ کر سکتے ہو, ہگنگ کر سکتے ہو لسٹ کے ساتھ, اس کو چھیڑخانی کر سکتے ہو, ٹچ کر سکتے ہو لسٹفلی, اور اپنے کھڑے ہوئے عضو تناسل کو اس کی تھائز کے درمیان میں اس کی تھائز کو فولڈ کر کے اس کے اندر رکھ کے رگڑ کے انجوائے کر سکتے ہو. دیر از نو مسئلہ ان دیٹ. آگے اب وہ بتائیں گے اگر تھائنگ کرتے ہوئے کیا کچھ ہو جائے تو اس کا گناہ نہیں ہے. ذرا بات کیجیے گا. فلا بأس بها, there is no problem in that. حتى even حتی جب تک کہ فالرضيعة, even with the baby girl, new. فرضیہ کہتے ہیں جو ابھی دودھ پیتی بچی ہو, رضاعی کے عمر میں ہو یعنی کہ کھانا نہیں کھا سکتی, وہ ماں کے تھنوں کے ذریعے سک کر کے دودھ پیتی ہے, ایون اگر وہ اتنی چھوٹی بچی بھی کیوں نہ ہو. Newborn, رضيعة means the baby that is suckling, that is being breastfed. بریسٹ فیڈ, بالکل صحیح بول دیا انہوں نے, بریسٹ فیڈ جس کو ابھی آپ دودھ پلا رہے ہیں ماں کے. That was born yesterday. Even with the young 1-day-year-old, 1-hour-year-old, 2-hour-year-old baby. What ان اس چھوٹی سی بیبی کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں can آپ؟ you do with the baby? He tells you, you can thigh it, you can hug it in a lustful way, and you can touch it in its private areas, and he names it as sexual pleasures. تو سیکشل پلیئر کے طور پہ اتنی چھوٹی بیبی کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں, ہگ کر سکتے ہیں, اپنے پرائیویٹ پارٹ کو اس کی تھائز کو فولڈ کر کے اس کے اندر ڈال کے رگڑ کے انجوائمنٹ لے سکتے ہیں, مفاخذہ کر سکتے ہیں. اور کیا کر سکتے ہیں With this newborn baby, then he says, وَلَوْ وَطَأَهَا قَبْلَ التِّسْعِ وَلَمْ يَفُضَّهَا. And even if this little baby, see this comma? It's not a full stop. It's a continuation of this. This baby, if she is penetrated, deflowered before the age of 9.
اور اگر یہ کرتے کرتے یعنی آپ نے اس کی تھائز کے بیچ میں اپنا ٹھلا رکھا ہوا ہے اور یہ کرتے کرتے آپ اس کی سیکس کرنے والی جگہ کے اندر گھسیڑ دیتے ہیں, لم يترتب عليه شيء, there is nothing that could happen to the man as a punishment, تو اس بندے کو کوئی حدود پنشمنٹ نہیں دی جائے گی کیونکہ پراببلی وہ غلطی سے اس نے اس کے اندر گھسیڑ دیا ہے. کہاں تک؟ nothing happens to the rapist as a punishment غير الإثم, other than that rapist has sinned between himself and God, which means there's no punishment, there's no imprisonment, nothing. تو بیسیکلی ایسے بندے کو آپ نے جیل میں بھی نہیں ڈالنا, ہنٹر بھی نہیں مارنے, کچھ بھی نہیں کرنا. یہ صرف اس کا اور اس کے رب کے درمیان غلطی ہے, گناہ ہے کہ اس نے تھائنگ کرتے کرتے اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھتے ہوئے لڑکی کے پرائیویٹ پارٹ کے اندر گھسیڑ دیا ہے. He just sinned a minor sin. Then he says, وَإِنْ أَفْضَاهَا, and if he does rape her, penetrate her, insert his male organ inside her, to the point بأن جعل مسلكي البول والحيض واحدا, to the point that he rips the passage between the vagina and the external side of the body. اور اگر وہ چونکہ بچی بہت چھوٹی ہے اور وہ اس کے آگے والے سوراخ میں ڈالتا ہے, لیکن چونکہ بچی بہت چھوٹی ہے تو ڈالنے کی وجہ سے اس بچی کا چھوٹی سی جو جھلی ہے جو کہ اس کے اینس کو, اس کے پوٹی کرنے والے سوراخ کو فرنٹ والے ورجائنا سوراخ سے سیپریٹ کرتا ہے, چھوٹی سی جو سکن ہے, اگر وہ ڈالتے ہوئے اس سکن کو پھاڑ دے, اس لیول پہ پھاڑ دے کہ آگے والا اور پیچھے والا سوراخ ایک بہت بڑا سنگل سوراخ بن جائے, تو أو مسلكي الحيض والغائط واحدا, to the point that there are no longer two holes, everything becomes one big hole. اتنا زیادہ پھاڑ دے کہ وہ دونوں سوراخ دو نہ رہیں بلکہ صرف ایک سوراخ بن جائے بڑا سارا. Because he has ripped the little baby in half, then he says حرم عليه وطئها, then only can you refrain from raping the little baby. لیکن اس وقت اگر آپ ایسا کر ڈالو تو اب آپ مزید اس کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتے. یہ بار بار ٹرانسلیٹ میں لفظ ریپ ڈال رہا ہے کیونکہ اس کو غصہ ہے, حالانکہ عربک کے اندر جو وہ پڑھ رہا ہے اس کے اندر ریپ کا ورڈ نہیں ہے. وہاں پہ کہا جا رہا ہے مزید پینیٹریشن نہیں کر سکتا, مزید سیکشول انجوائمنٹ نہیں کر سکتا. اور اس کو کیا کرنا پڑے گا سر, سنیے گا, کیونکہ اس کے ساتھ وہ شادی کر چکا ہوا ہے, یعنی کہ اور لہذا کیا ہوگا. Then he says over here ويجب عليه نفقتها إذا دامت حية, and if she remains alive, this little baby, if she remains alive, then you have to give her money. اور اس موقع پہ اگر وہ بچی زندہ رہ جائے تو اب اس کو پیسے دینے ہیں. کون سے پیسے؟ جو آپ نے نکاح کے لیے اسٹیبلش کیا تھا پیسے. اب یہ پیسے دینے کے بعد وہ بچی جس کا آپ نے اگلا اور پچھلا سوراخ پھاڑ کے ایک بڑا سا سوراخ کر دیا ہے اور سم ہاؤ وہ بچ جائے اور سم ہاؤ اس کو کوئی ٹانکے شانکے لگا دیا جائیں اور اس کا پچھواڑے کا سوراخ دوبارہ پچھواڑے کا بن جائے اور آگے کا سوراخ دوبارہ آگے کا بن جائے, لیٹس سے آفٹر اے ایئر اور سو, اب وہ صحیح ہو گئی ہے, تو اس کے ساتھ کیا کرنا دیکھیے گا. وَإِن طَلَّقَهَا, even if he divorces her, this little baby girl. Now, بل وَإِن تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ, and after this rapist has finished raping the little baby girl and he pays her the money and she goes to marry off another person, another rapist, who's a baby girl marries off another rapist بعد الطلاق على الأحواط, and then after she rapes this, she is raped once again by the new rapist. It says ويجب عليه دية الإفضاء, he needs to give her, this little girl, more money, the dowry. اور اب جب وہ چھوٹی سی بچی اس طریقے سے پھاڑی پھوڑی جا چکی ہے, ریپ آف کر کیا جا چکا ہے, اس کو بعد میں طلاق بھی دے دی اس نے کہ ہاں اب یہ میرے قابل نہیں رہی ہے, یہ لو پکڑو اس کے پیسے, جو ڈاوری کے پیسے سے دیکھ لو. اس کے ماں باپ اس بچی کو سیلا سلو دیتے ہیں, ٹانکے لگوا دیتے ہیں, وہ دوبارہ صحیح ہوتی ہے. ناؤ وہ دوبارہ کسی دوسری کے ساتھ شادی کیا جا سکتا ہے اسی بیبی کا. ناؤ میرے جان, یہ خمینی کا شرع ہے اور آپ خمینی کو مانتے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ اس قسم کے ریپسٹ ایڈوکیٹ کو آپ کیسے مان سکتے ہیں میری جان؟
आप प्लीज एक्चुअली थोड़ा सा स्टार्टिंग का लगाओगे, क्योंकि मुझे देखना है कि क्या इन्होंने कुछ नीचे मिस किया है. स्टार्टिंग इन द सेंस Bro, जहाँ से पेज Tawheed is स्टार्ट, जहाँ पे lying. पेज स्टार्ट These है. are not the books of Khomeini. यही जगह स्टार्टिंग की? नहीं नहीं, जहाँ पे इन्होंने मार्क किया है, जहाँ पे मार्क है वो पहला पेज. आपके पास ये किताब है? आई डोंट खुद थिंक खोल सो, के मेरे पढ़ लो। पास है, ऑनलाइन होगा. नहीं नहीं, खुद मेरे खोल पास के नहीं पढ़ लो। होगा. भाई थोड़ा तहकीक कर लो ना, तहकीक कर लो थोड़ा. ये देखो ना, आपके पास सारा अब कुछ है। ये लो, हाँ, ले आया मैं अब स्टार्टिंग में। अब आप देखो इसमें नीचे जो भी पैराग्राफ्स लिखे हैं, क्योंकि देखो वीडियो में तो नीचे नहीं के जो समझ में आ रहे. पैराग्राफ हैं वो एक्सपोजिशन है ऊपर की, इससे भी ऊपर की, बट दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज कि जो शरह है वो क्या बता रही है, वो उसने लिखा है. जब भी आपका लाइन लगती है और किसी लिखा जाता है उसको फुट नोट कहते हैं. वो शरह का पार्ट नहीं होता, वो फुट नोट होता है मजीद एक्सप्लेनेशन करने का. इट हैज नथिंग टू डू विद के खुमैनी ने क्या कहा है. वो खुमैनी के बाद कोई और बंदा है जिसने फुट नोट ऐड किए हैं. जब भी लाइन लगी होगी किसी भी जगह पे तो उनको फुट नोट कहा जाता है. वो जो दूसरा बंदा होता है, जो पब्लिशर होता है या जो भी होता है, वो अपने एडिशनल फुट नोट्स डालता है. बट दैट हैज नथिंग टू डू विद इट. ये अब आपका काम है कि आप इस किताब को पढ़ें. ओके, ओ माय गॉड, क्या वीडियो था, क्या यार. ऐसी चीजें सुन के ना दिमाग हिल के रह जाता है. कौन से लोग हैं, आप उस बंदे का दिमाग सोचो जिसने ये चीजें लिखी हैं. उसका दिमाग कितना घटिया होगा कि साइकोपने का वो बंदा है जो एक छोटी सी बच्ची. और ये लोग हमारे बीच में रहते हैं, ऐसे लोग. आप हम अपने बच्चों के साथ बाहर घूम रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि कौन आपकी बच्ची को कितनी गंदी नजर से, या बच्चे को भी, लड़के को भी कितनी गंदी नजर से देख रहा है. और ये किताबें एक मजहब के नाम पर बेची जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ये खुदा ने ये कहा है. लोग इन चीजों को पढ़ रहे हैं. इमेजिन करो आप यार, 5 ये छोटी सी बेबी हो, 2 दिन की बेबी हो, 1 दिन की बेबी हो, यानी सब कुछ. आई डोंट नो, आई डोंट नो कि कौन सा खुदा है भाई, कौन सा है भाई. औरत को या जो महिला बोलते हैं उनको, खातन को, हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज के लिए देखा जाता है. हमसे बस सेक्स लो और खरीदो और पैसे दे दो उसके, बस हमें आओ, इस्तेमाल करो और उसके पैसे, उसके बदले में पैसे दे दो. तो हमको जो ये प्रोस्टिट्यूट बनाया है, ये बनाया किसने है, पहले ये बात बताइए ना. क्योंकि प्रोस्टिट्यूट से तो बड़ी प्रॉब्लम होती है इनको, है ना. कि ये देखो, ये तो तवाइफ है, या ये तो क्या कहते हैं 2 नंबर की है, ये तो ये हरकतें करती है. भाई आप ही जा रहे होते हो ना, आप सबसे पहले तो आप निकाह करके आपने उसको, औरत को इस्तेमाल किया और फिर उसके पैसे दे दिए. फायदा क्या होता है प्रोस्टिट्यूशन में क्या होता है, यही होता है ना कि आप बंदी खरीदते हो, सेक्स करते हैं उसके साथ और फिर आप पैसे दे देते हैं उसके. तो इसमें क्या डिफरेंस हुआ, और फिर उसको आगे दोबारा बेच दिया जाता है. और ये हमेशा से रहा है, ये जब से दुनिया रही है मेरे ख्याल से, तब से. अरे मैं ये नहीं कहूँगी जब से दुनिया रही है, मगर जब से हमें ये पता है कि ये अब्राहमिक रिलीजन्स रही हैं, तब से हमको इतना पता है कि औरतों को, और इवन बिफोर दैट आई थिंक, कि एक वो कमोडिटी की तरह इस्तेमाल किया जाता था. जैसे भेड़ बकरियां ट्रेड करते थे, सोना एक्सचेंज करते थे, चांदी एक्सचेंज करते थे, इस तरह से हम औरतों को भी जो है बेचा जाता था. पहले एक के पास बिकती थी, फिर दूसरी, क्योंकि हमारे पास खजाना है, हमारे टांगों के बीच में खजाना है, ऐसा है कि वो बेचा जा सकता है. और मर्द को ये पता था, राइट. तो मर्द हमेशा से बेचता रहा है. और अब अगर कोई औरत खुद मर्जी से बेचना चाहती है तो वही मर्द, उसको प्रॉब्लम हो जाती है. सबसे ज्यादा उसी मर्द को प्रॉब्लम होती है जो पहले जो है वो बेचा करता था खजाना. मगर अगर औरत कहती है मेरा खुद का खजाना है, मैं खुद बेचूंगी, तो अब वही औरत बहुत ही खराब हो गई है. उसको फिर प्रोस्टिट्यूट, उसको 2 नंबरी उसको बोला जाता है, क्योंकि उसने दलाल को निकाल के बीच में से फेंक दिया, राइट. अब दलाल नहीं रहा बीच में, तो दलालों की तो खाना पीना बंद हो गया. तो दलाल अब यही कहेंगे ना कि ये औरत ही खराब है. सो दिस इज जस्ट अ वेरी सैड रियलिटी. और ये आज भी है, इट्स नॉट के ये आज नहीं है, इट्स द सेम थिंग. अगर आप दूसरी जगहों पर देखो, वीडियोस में देखो, अगर आप कमर्शियल्स में देखो, तो भाई एक रेजर के कमर्शियल में, मर्द के रेजर के कमर्शियल में एक औरत को क्या दिखाना है आपने, क्या दिखाने को, वो बस दिखाने के लिए बैठे होते हैं. इट्स जस्ट, हमने अपने आप को सेक्सुअलाइज नहीं किया है, मर्दों ने हमको सेक्सुअलाइज किया है. हमें, आप जो मुझे आगे बोलते हो ना, ये बैठ के वहां दिखाती है, इसको तो लोग इसी वजह से देखते हैं कि वो मेरी लकीर है. हाँ, शायद लोग इसी वजह से देखते हैं ये लकीर, और मेरी लकीर लगती है बड़ी खूबसूरत है. भाई पुराने जमाने में कोई मर्द होता ना, उसने मुझे ये छोटा सा टॉप पहनाकर खड़े कर देना था, ठीक है ना. और मर्द आते वहां पर, उसको पैसे देते और मेरी लकीर देखते, उसको पैसे जाते. अब वो पैसे मेरे को आ रहे हैं, तो मैंने बस उनकी जॉब खत्म कर दी है. एनीवेज गाइस, मुझको ये बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा. थोड़ा सा डार्क साइड पे है, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग चीजें इसमें हैं, मगर आई होप कि आपको पसंद आया होगा. कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा. उसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. मुझे पता है आप लोग सब देख रहे होते हैं, मगर आप सब्सक्राइब नहीं करते यार.
सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब। एक उंगली उठाने का सवाल है बाबा, एक उंगली उठानी है आपने, शेयर में, और हाँ वो नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाइएगा, वरना आपको हमारे नए वीडियोस का पता ही नहीं चलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ज्यादातर वीडियोस को डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, मगर अब आप हमारी सपोर्ट कर सकते हैं यूट्यूब पे मेंबर बन के, पेट्रियन पे मेंबर बन के, या ओनली फैंस में मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप पेपैल या सुपर चैट या सुपर थैंक्स या यूपीआई के थ्रू भी डोनेशंस भेज सकते हैं। चलें गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।